Rahil, is he here or what? Not there. Rahil, why you have stopped visiting the college? Okay, friends, so let me just brief you about what we had done in the last session. We had moved to the loan and debt finance. We had discussed the features, characteristics of the loan finance. We had discussed the advantages from the company's point of view as far as the loan finance is concerned. Disadvantages were pending to be discussed, will be done today. Along with that, some theoretical knowledge of debentures will be taken, and then we'll go to the cost of debt formulas practically. So here we have in front of us the disadvantages of the term loan finance, friends. And the first and foremost disadvantage from the company's point of view is that it entails fixed interest and principal. When your liability is fixed, you are supposed to contribute this much anyhow, irrespective of whether you have got a good business or not, irrespective of the fact that whether the situation is good or not. It increases the burden on you. Yes, some people perform well in the burden, some people will collapse in the burden too. एक समय के बाद अगर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो तकलीफ हो जाती है भैया. But in case of the equity shareholders, your liability is not limited. I mean, your liability is not fixed. You may avoid it. It's not an obligation for you to pay the dividend, yes or no. If the businesses are not doing good, you may say, भैया इस बार नहीं, अगली बार. हमारे पास पैसा इस बार नहीं है. लेकिन इनको कह सकते हैं लोन वाले को, अब भैया हमारे पास पैसा नहीं है, तो कुछ भी करो, किधर से भी निकालो, और नहीं बताओ, ऐसा बताओगे ना हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर वो और तकलीफ में आ जाएंगे. अब नेक्स्ट टाइम से तो और ध्यान रखेंगे, भैया यहाँ पे बेड डेट्स के चांसेस बढ़ गए, अब थोड़ा सा कर लो, अब ध्यान रख लो इन कंपनी का. Failure may lead to a major embarrassment. Reputation may be lost, so many disadvantages. It increases the leverage, and due to which the cost of equity will also raise. Yes. The leverage stands for the fixed commitment you have already given, even without earning any income. All the fixed costs which you commit right now, even before earning the income, is basically the risk taken by you, my friends. That's also regarded as the leverage in the finance language. How much leverage we have taken. मतलब कि हमने कितना फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन ले लिया है. अब शुरू में तो फिक्स्ड कॉस्ट के फायदे आते हैं जब कंपनी ग्रो होती है. But when the company will be on the diminishing trend, at that time it becomes curse on you. फिक्स्ड कॉस्ट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका सेल्स जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को वहां बैठे पड़े हुए हैं, उसमें तो ना तो कोई चेंज आ रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कैन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द बैड डेज. Yes, in the good days there will be a very good thing for you, but in your bad days there will be a curse on you. Are you getting my point? Now, जब खराब समय आएगा ना, कंपनी के ऊपर रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, जब कंपनी बहुत ज्यादा लोन लेना शुरू कर गई है, उस समय पे इक्विटी शेयर होल्डर्स भी वहां पे कट लेने का प्रयत्न करेंगे. कैसा प्रयत्न करेंगे? वहां से कट लेने का. वो बोलेंगे यार ये तो रिस्क लेते जा रहे हैं. कल जाके कंपनी ने अगर हाथ खड़े कर दिए विजय माल्या और नीरव चौकसी की तरह, तो हम करेंगे क्या? And investors are always faster in reaction in comparison to every other stakeholders. That's been historically seen. Yes बैंक में जब पैसा लोग डिपॉजिट करते थे, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे वो अभी भी पॉजिटिव थे, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स वर स्मार्टर इनफ टू अंडरस्टैंड कि कुछ गलत हो रहा है. From 2016-17, the price trend was continuously on the diminishing trend. If you look at the market price of the Yes Bank, but the collapse actually took place in 2020. Yes or no? So can I say that equity shareholders were proactive enough? 600 रुपए की प्राइस अंत में 10-20 तक पहुंच गई थी. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फिर क्या बताएंगे कि भाई डिविडेंड पे तो ज्यादा दे दो, क्योंकि यहां से अब ज्यादा रहने में भलाई नहीं है.
जल्दी से या तो डिविडेंड ले लो, या तो फिर इनको बताओ कि मार्केट प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट करके दे, कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह करके दे, कुछ एक्सपांशन प्लान्स वगैरह अनाउंस करे, हम अपनी मार्केट प्राइस लेके इधर से कट मार लेंगे, अब हमें ज्यादा ठहरना नहीं है. So the cost of equity will also eventually get raised. Am I sounding clear? Third one, lenders may impose restrictions on borrowing firms' financial and operating flexibility. The people who have given you the loan may impose a lot of restrictions on you. Now that depends upon how financially viable and stable the company is, based on at what scale you are operating, based on the production capacity at which you are operating, based on the coverage of assets you have, based on the magnitude of scale you are operating, the restrictions may be imposed on you. Obviously that differs from person to person, because हर अंबानी मुकेश अंबानी नहीं होते, कोई कोई अंबानी अनिल अंबानी भी होते. तो भैया उस समय पे आपको अगर चाय पीने भी जानी हो ना, तो भी ये बैंक वालों को पूछ के जानी पड़ेगी, भाई चाय पीने जा रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा, देखो भाग नहीं जा रहा हूँ, ठीक है. एयरपोर्ट पे जाते हो ना, तो ये लोग ऐसे सर्वेलेंस कैमरा लेके उधर आ जाते हैं. एयरपोर्ट क्यों गया, कहीं इंडिया छोड़ने का तो प्लान नहीं है इन भाई साहब का, तो फिर सर्वेलेंस बहुत बढ़ जाता है when the position is too risky. So they may put the restrictions on you on meetings of the board of directors. भैया एक तो मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, मेरा मीटिंग रूम, मेरा प्रोजेक्टर, मेरे सब डायरेक्टर, कंपनी भी मेरी, सेल्स भी हमारी, जो एजेंडा है वो भी हमारा, लेकिन उसके लिए परमिशन हम किन से ले, तुमसे ले. मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, ऐसा करते हैं भैया, तो रिस्ट्रिक्शंस वो लगा सकते हैं. नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ फाइनेंशियल well you are, you know. If the rate of inflation turns out to be unexpectedly low, then the real cost of debt will be greater than expected. Now I must appreciate some of the students who had personally communicated me that they couldn't understand this inflation point. They had personally put the message in my chat box that sir ये inflation वाला आप समझा रहे थे ना last time advantages में, वो समझ में नहीं आया. So I'll be putting again a little bit of focus here. Very important point. Please put the focus. Earlier, when we were not having any knowledge of economics and financial management, the inflation was not influencing our decisions a lot. But now we have got the knowledge. We know the time value of money. We know that how inflation can adversely affect my returns. The inflation is now a very important factor to take any financial decision, friends. Let's consider this. When it was the investment, I had always told you that you will have to find your effective rate of return, right? Considering your inflation. Say you are getting 10% of the return from any investment avenue, and the inflation rate is 8%. How much? 8%. So effectively, how much you have earned? 2%. That's the effective return you have got. Now this effective return, lower for you, not good for you. If it is higher for you, it's good for you. Yes or no? The similar mechanism applies in the cost of debt as well. The effective cost of debt for you is the cost of debt minus the inflation rate. So say there is 8% of the cost of debt, often denoted as KD, and the inflation rate turns out to be say 7%, then the effective cost of debt for you is how much? 1%. Now this one which is a lower for you, that's good for you. If the cost of debt effective will be high, that's bad for you because it's a cost for the company. Yes or no? अच्छा सर, इन्फ्लेशन के कारण मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कम होता है, ये समझने में नहीं आया. इसका मतलब तो ये हुआ कि जब इन्फ्लेशन होता है, जब प्राइस लेवल्स ज्यादा होते हैं, इन्फ्लेटेड प्राइसेस होती है, उस समय पे मेरे कॉस्ट ऑफ डेट के लिए अच्छी बात है. यस, अच्छी बात है. आपका कॉस्ट ऑफ डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन. लेट्स कंसिडर द एग्जांपल. से यू आर मेकिंग द सेल्स ऑफ 100 rupees अर्लियर. हाउ मच? 100. एंड योर एक्सपेंस वाज से 50 rupees. Clear? So profits are how much? 50 rupee. Now there is a 10% inflation on both the sides. The goods and services which you are buying as well as which you are selling are getting inflated by how many percentages now? 10%. So your sales will be 110
and your expense will be 50 plus 5 will be 55. That means your profit will be how much? 55. Try to understand. Say you have taken the burden of loans. On that loan, you are supposed to pay the interest of 10 rupee. That is not going to change, irrespective of whatever the inflation rate would be. Yes or no? Earlier as well, you were making the payment of 10 rupees of interest. Now as well, you are making the payment of 10 rupees of interest. So effectively try to understand. आपने एक यूनिट ऑफ गुड्स भी ज्यादा सेल नहीं किया है. जितना डिमांड पहले था उतना ही डिमांड मार्केट में अभी भी आपका है, लेकिन सिर्फ प्राइस लेवल चेंजेस के कारण आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ गया? तुम्हारा जो 10 रुपए का कॉस्ट ऑफ डेट था ना, उसमें से 5 रुपए तो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ प्राइस लेवल चेंजेस कंट्रीब्यूट कर रहा है. समझ में आने वाली बात है? 10 रुपए का जो सर मेरे ऊपर बर्डन था ना इंटरेस्ट पे करने का, उसमें से 5 तो सिर्फ किसने कंट्रीब्यूट कर दिया? इंक्रीमेंट इन प्राइस चेंजेस. एक भी पैनी का मैंने डिमांड को इंक्रीज नहीं किया है. जितना गुड्स पहले सेल करता था उतना ही गुड्स सर आज भी सेल करता हूं, लेकिन सिर्फ प्राइसेस में बढ़ोतरी हो गई. 5 रुपए मेरे डेट के वैसे निकल गए. बट इफ द इन्फ्लेशन टर्न्स आउट टू बी अनएक्सपेक्टेडली low, there may be some deflation situation as well where the prices of goods and commodities may get decreased. At that time this becomes very high. There are few countries where there is a deflation rate. You may take the example of Japan, some advanced economies. After reaching to a saturation level, no, there won't be too many price level inflation now after an extent. एडवांस्ड इकोनॉमीज कुछ समय के बाद डिफ्लेशन में जाती है. प्राइजेस कमोडिटीज के और सर्विसेज के कम हो जाते हैं उस समय पे. बैंक ऑफ डेनमार्क नाम सुना है किसी ने? सुना है? बैंक ऑफ डेनमार्क started offering the negative interest rate on the home loan in 2019. नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ऑन द होम लोन. इसका मतलब ऐसा हुआ सर कि हम बैंक ऑफ डेनमार्क से अगर लोन लेते हैं होम लोन तो वो हमें पैसे देंगे. That's true. The company was facing the deflation crisis. The prices of the goods and commodities were constantly falling. The interest rates of the government were falling, their reserve bank, and accordingly the interest rates of the banks of which were offering on the loans was also falling, and it went to negative too. You may read that case study. उस समय पे क्या हो जाएगा समझने की कोशिश करो. समझ लो 100 रुपए का तुम्हारा ओरिजिनल सिचुएशन है, ठीक है. अब डिफ्लेशन आया है 10% का. एकदम हाइपोथिकेटेड सिनेरियो लेते हैं. क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं. सॉरी, वो हाइपोथिकेशन याद आ गया, वो वाला सिक्योरिटी वाला. हाइपोथेटिकल लेते हैं. अच्छा, 100 रुपए में से 10% कम हो गए तो ये कितना हो गया? 90. ये 50 का कितना हो गया? 40. तो आपके प्रॉफिट्स कितने हो गए? 40. सर मैंने तो सेल्स एक क्वांटिटी का भी रिड्यूस नहीं किया, फिर भी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितने से कम हो गई? 5 रुपए से. तो उस समय पे लोन आपके लिए ज्यादा बर्डन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अगर समझ लो तुम लॉस में चले जाते हो या तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, तो फिर लोन तो बहुत ज्यादा बर्डन हो गई ना. अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव चल रहे हो और तुमने फिक्स्ड इंटरेस्ट का लोन लेके रखा है 10% का पहले से, और आप नई वाली लोन लेने जाओ तो 8%, 6% में मिल जाती है. तकलीफ हो जाती है. फिर नए वाले टर्म्स में आपको अगर लोन को रीशेड्यूल करना पड़ेगा. बैंक अलाउ करे ना करे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो ना हो, हमें मालूम नहीं है. बट व्हेन द इन्फ्लेशन विल बी अनएक्सपेक्टेडली लो or there may be a deflation kind of a situation, at that times the cost of debt becomes a lot of burden for you. Are you getting my point? Okay, so these are the disadvantages of the term loan. Clear? Confirmation through the chat box as well from the online students that you are clear till now. All of you please. Yes sir, clear. Thank you so much. कुछ लोग अभी तक गुड मॉर्निंग में ही हैं. नहीं, वो 11:02 का मैसेज था. सर आप लेट पढ़ रहे हो तो हमें बता रहे हो गुड मॉर्निंग लेट कर रहे हो. थैंक यू सो मच मिस्टर सोहम, मिस्टर जैनिल, मिस आमरीन, मिस्टर मानन. वेरी नाइस. लेट्स मूव अहेड.
I'll be taking not more than 5 minutes of yours now. Let's discuss the debentures and then we'll move to the cost of debt formulas. Now friends, loan may be taken in two ways, right? One is in a lump sum manner from the banks and financial institution. Another type of a loan is in a katke manner. In which manner? Katke manner. टॉम डिक एंड हैरी, चंदूलाल भाई साहब को बोलोगे 1 करोड़ रुपए का लोन देना है तो उनकी सांसें अटक जाएगी। क्या हो जाएगी? सांसें अटक जाएगी। 1 करोड़ रुपए चंदू भाई के पास होते हैं तो वो चंदू भाई होते हैं और बैठते बेचारे नीचे इधर। तो हाँ, लेकिन चंदू भाई को बोलो 1000 रुपए का आपको लोन देना है, आपको जो फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना उससे 2% ज्यादा देंगे। तो चंदू भाई के मन में क्या फूटा? लड्डू फूटा। एक तो इन्वेस्टमेंट भी 1000 रुपए का, फिक्स डिपॉजिट करने जाओ तो 50,000 लाख रुपए मांगते हैं। एक तो 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और उसमें भी फिक्स डिपॉजिट से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 2% ज्यादा। चंदू भाई बोले करना चाहिए भैया इन्वेस्ट। तो डिबेंचर्स कंपनी इन्वेस्ट इश्यू करती है इन अ कटके 1000 numbers of debentures, lakhs numbers of debentures. It is basically the loan taken from the public at large. Now you people may have a doubt, कि सर डिबेंचर कंपनी इश्यू क्यों करेगी? उनको अगर लोन्स और बोरोइंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं तो फिर डिबेंचर में इतनी मगजमारी करने की क्या जरूरत है? डिबेंचर्स के अंदर आप तो कटके बनाओ, फिर बहुत सारी एजेंसीज के परमिशन लो, डिबेंचर होल्डर्स के पास जाओ, उनसे प्रोस्पेक्टस वगैरह सब इश्यू करो, मार्केट में आओ, कितनी सारी एजेंसीज के परमिशन लो। इतनी झंझट करने की जरूरत क्या है? सीधा अगर अपन लोन ले सकते हैं बैंक से। ये झंझट इसलिए होती है क्योंकि देयर आर वेरियस फीचर्स अवेलेबल इन द डिबेंचर्स, दोस फीचर्स आर नॉट अवेलेबल इन द लोन। दोस फीचर्स may be beneficial sometimes to the debenture holders, may be beneficial sometimes to the company. What are those features? Let's move ahead. So first of all, there will be a one person who will be called as a trustee or maybe a group of persons. वो कौन होते हैं? ट्रस्टी होते हैं भैया। ट्रस्टी को हम बीच वाला बंदा कहते हैं। कौन सा वाला बंदा? Just like that Pandit ji does the settlement between groom and bride, the similar kind of a settlement and arrangements will be done by the trustees for debenture holders and the company. शादी के बाद पंडित जी ने अगर देखा था हमारे लिए ठिकाना और कुछ प्रॉब्लम आता है तो किसकी कॉलर पकड़ते हैं हम? ये आपने बोला था ये करेगा हो करेगा, देखो अब कैसे हमें फंसा दिया है। पंडित जी को पकड़ते, बीच वाले बंदे को कहते हैं कि नहीं कहते? तो अगर डिबेंचर होल्डर्स को कोई तकलीफ हो गई तो फिर वो किसे बताएंगे? ट्रस्टीज को बताएंगे। सर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से डायरेक्टली विचार कैसे हम कोऑर्डिनेट करें? एक बच्चे जाएंगे तो एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? So these trustees are basically keeping the trust of debenture holders. अच्छा, debentures may be secured, may be unsecured. There may be some assets kept aside for the debentures, right? If those assets are put as a security. Now, whether the company is maintaining those assets adequately, properly, who will be taking care of it? Trustees. मेरे जो असेट्स है ना उसको कंपनी ने कहीं पे उसको चेंज कर दिया और सेल कर दिया तो किसी को पूछे बिना, डिबेंचर होल्डर्स थोड़ी ना बेचारे रोज कंपनी के विजिट करते हैं, ऐसा दरवाजा खटखटाए, मेरे 1000 रुपए है रिलायंस, मेरे 1000 रुपए दिखा, मेरा डिबेंचर किधर है, मेरा असेट, ऐसा कहने का समय है उनके पास। और रिलायंस में वॉचमैन उनको आने भी देगा बेचारों को? तो फिर कौन ध्यान रखता है ये सब? ट्रस्टीज ध्यान रखते हैं। देयर में बी इश्यूज between the debenture holders and the company. There may be disputes. Dispute resolution may be done by the trustees. The custody of the assets under the security will also be kept under a trustship of this trustees. Company wants to pass on some information, तो एक एक को बुलाएंगे, और छगनलाल भाई इधर आ जाओ, और मगनलाल भाई इधर आ जाओ, और टॉम डिक इधर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ पास करना है। ऐसे thousands number of debenture holders को तुम कम्युनिकेशन कैसे करोगे? बीच वाला कोई बंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? So these are the trustees. It may be secured, it may be unsecured. अगर भरोसा है तो unsecured, कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो secured. Secured मतलब कि कोई असेट रखो भैया, असेट रखो, असेट कोई तुम्हारा फर्नीचर है ना उसको हम असेट ले लेते हैं कोलेटरल के हिसाब से, ठीक है? अगर पेमेंट नहीं करोगे तो इस असेट को बाहर मंडी में जाके बेच देंगे हम। लेकिन अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े से
ज्यादा होते हैं, बिकॉज द इन्वेस्टर्स आर टेकिंग द रिस्क विदाउट एनी सिक्योरिटी, इट्स टू मच ऑफ रिस्क, राइट? तो फिर वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे, भैया 10% नहीं चलेगा, 12% चलेगा, एक तो रिस्क लेते हैं तो 2% ज्यादा देना पड़ेगा। Unsecured loans offered by the NBFCs and banks nowadays somewhat near to 25% interest they are charging. 25% का इंटरेस्ट मर जाओगे भैया, फिर भी लोग लेते हैं, बोलो। कोई तो एजेंसी मैंने सुना था अपना ही बच्चा उधर प्लेसमेंट में लगा, वो एनबीएफसी के लोन डिपार्टमेंट में काम करता है, अनसिक्योर्ड लोन वो 30% की पास करता है। मैं बोला मार डालोगे तुम लोग, मार डाला। 30% का इंटरेस्ट मतलब 3 साल में पैसे डबल। अच्छा, अनदर फीचर इज द इंटरेस्ट रेट्स। भांति भांति के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। कैसे होते हैं? भांति भांति के। There are various options given to the company for the interest rates, friends. There may be a fixed percentage of the interest rate on the debenture, says flat 8%. Flat 8%. There may be a variable option available to the debenture holders. There may be some base rate taken, and on that base rate, some variable portion may be added. Say, try to understand. कंपनी में डिसाइड कि भैया जो रेपो रेट चल रहा है ना, बाई मंथली रेपो रेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर हम तुम्हें 2% देंगे। तो रेपो रेट तो चेंज होता रहेगा सालाना, तो रेपो रेट जितना होता रहेगा उससे 2% ज्यादा, उसके 2% ज्यादा। सो नाउ दैट बेस रेट मे बी अ रेपो रेट, मे बी अ yield from the government bonds, maybe some other sort of a return to fixed deposit का रेट हो सकता है। बेस रेट में भी any rate plus some percentage of the fixed will give you, so your entire interest rate will keep on changing on time to time basis. अच्छा, कोई कोई डिबेंचर्स तो होते हैं ना, वो जीरो कूपन डिबेंचर्स होते हैं। कैसे कूपन? जीरो कूपन, मतलब कि जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स। तो कोई बोले हमने सेवा करने के लिए डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है क्या, कुछ इंटरेस्ट ना दो तो हम इन्वेस्ट क्यों करें उसमें? बट दोस डिबेंचर्स आर इश्यूड एट द हेवी डिस्काउंट्स। Say the company is taking 70 rupee from the debenture, and at the time of the redemption they will pay you how much? 100. तो 30 रुपए मिले कि नहीं मिले? That's the capital gain, right? You are not getting in fact any interest effectively. It's just the changes in the difference between the face value, sorry, the issue price and the maturity price. That difference is basically earned by debenture holders. Those bonds are often regarded as zero coupon bonds. Clear है? आगे बढ़ते भैया। मैच्योरिटी एंड रिडम्पशन, अकाउंटिंग में कंजर्वेटिज्म मालूम था? कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल अकाउंटिंग फॉलो करता है, याद आ रहा है? मतलब सर भविष्य के अंदर मुझे जो बड़े बड़े खर्चे और स्पेंडिंग लग रहे हैं ना, उसका प्रोविजन में अभी से क्रिएट करना शुरू कर दो, है कि नहीं? उसे हम कंजर्वेटिज्म कहते थे। 5 साल के बाद अगर कोई बड़ा सा पेमेंट करना है तो हम सालाना कुछ कुछ इकट्ठा करते कि नहीं करते, उसको अकाउंटिंग में प्रोविजन क्रिएट करना कहते थे। तो भैया इसमें है ना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है? 5 साल के बाद तुम्हारा मैच्योरिटी रिडम्पशन आएगा, 5 साल 10 साल जितने भी साल होंगे, तब एक साथ तुम्हें पैसे निकालने पड़ेंगे, तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी कंपनी को? अभी से कुछ कुछ निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? तो उसे कहते हैं हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये हाँ, अब देखो बेटा, इतना रिजर्व्स क्रिएट करोगे तो फिर आपको अपने प्रॉफिट्स में से कुछ कुछ पैसे तो उसमें ही रखने पड़ेंगे, उस पैसे को कहीं और जगह पे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अभी परसों का स्टेटमेंट आया, हमारी देवी जी कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, वो बोल रही है कि जो यूपीए गवर्नमेंट ने बॉन्ड इश्यू किए थे ना, ऑयल बॉन्ड्स, उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है, इसलिए हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस कम नहीं करेंगे। जैसे हमारे सर पे तो चोटी है। मैंने देखा कि इन लोगों के ऑयल बॉन्ड्स कितने हैं, तो अभी तक उन लोगों ने 50,000 करोड़ के आजू बाजू में पेमेंट किया है ऑन फॉर द इंटरेस्ट ऑन द ऑयल बॉन्ड्स इश्यूड बाय द अर्लियर गवर्नमेंट ऑफ यूपीए अंडर द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। और मैंने ये भी देखा कि आने वाले कुछ साल के अंदर उनको और कितने इंटरेस्ट पेमेंट्स करने पड़ेंगे, तो दैट इज समवॉट नियर टू 40,000 करोड़। हाउ मच? 40,000। 50 प्लस 40 कितने हुए? In the last year, the tax collected from the excise as well as the
customs duty on the petroleum products was somewhat near to 3,51,000 crores. How much? 3,51,000 crores. माना रिडम्शन भी आएगा ऑयल बॉन्ड्स का, उस समय पे भी पैसे देने पड़ेंगे। भाई तुम गवर्नमेंट हो, हम थोड़ी ना गवर्नमेंट है। तुम्हें रिडम्शन के पैसे इकट्ठे करके रखने चाहिए थे कि नहीं रखने चाहिए थे? तुम इधर प्राइस बढ़ाते जाते हो, एक महीने में 20-20 बार प्राइस बढ़ाते हो। अच्छा, when you look at the long picture, no, for last 5 years, 6 years, then there hasn't been any significant increment in the prices of oil and petroleum, because earlier, before 8 to 10 years, it was costing somewhat near to 60 to the normal public. Nowadays it is costing 100. So it's effectively the CAGR, compounded annual growth rate of 4 to 5%. 4-5% से दाम में बढ़ोतरी होती है, तो ये कोई हंगामा क्रिएट करने वाली बात नहीं है, माना। लेकिन एक साथ इतने ज्यादा इंक्रीमेंट हो गए, पहले तो वो प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम, आपने गलत बहाने बताए, वो प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैजंट इंक्रीज्ड एट ऑल। पर बैरल क्रूड ऑयल प्राइस एट दैट टाइम व्हाट वी वर कॉस्टिंग इज स्लाइटली लेसर देन दैट नाउ। तो इसलिए आईब्रोज रेस होते हैं ना, वरना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4-5% के प्राइस बढ़ोतरी होनी, ये कोई बड़ी बात नहीं है फॉर द इमर्जेंट कंट्री लाइक इंडिया। आगे बढ़े। So there is always the pressure on the company to do the redemption. They will have to keep on creating the reserves, and accordingly the redemption will take place after so and so years. There may be call and put feature. Which feature आस्था? Call and put feature. अच्छा बेटा, आप खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? पारुल नाम है। बेटा आप खड़े हो जाइए, आपका भी नाम बता दीजिए बाकी सबको। वत्सल। तो ये जो पारुल है ना, कोई डरने की बात नहीं है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये जो पारुल है ना, वो कंपनी है। कौन है? कंपनी है पारुल लिमिटेड। एक तो यूनिवर्सिटी हमारे बाजू में बैठी है, ब्रांड एम्बेसडर रखती रहती है। हमारे पास जाडू है। कौन है? जाडू। अच्छा, तो ये जो पारुल मैडम है ना, वो कंपनी है। उन्होंने डिबेंचर्स इश्यू कर दिए इनको, किनको? वत्सल भाई साहब को। तो पारुल ने कितने साल के लिए डिबेंचर्स इश्यू किए हैं? 5 इयर्स के लिए। अब पारुल को पैसा चाहिए 3 साल के बाद। पारुल को पैसे दे देना है 3 साल के बाद ही। हर कोई उसकी क्रिटिसाइज कर रहा था, भाई तुम्हें तो कितना डेट है, तुम तो कितना ज्यादा लिवरेज लेके रखी हो, तुम्हारी कंपनी में तो प्रॉब्लम है, इतने ज्यादा आपको बर्डन नहीं लेना चाहिए। हर कोई ऐसा कमेंट कर रहा है। पारुल बोल रहा है, यार मेरे पास तो फंड्स आ गए हैं, अब पैसे डिबेंचर्स होल्डर्स को मैं दे दूं, मेरे को रिडम्पशन है ना वो प्री मैच्योर कर लेना है। कौन सा वाला? प्री मैच्योर। तो अगर 3 साल के बाद इफ पारुल वांट्स दैट ऑप्शन टू प्रीमैच्योरली रिडीम इट इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिडम्पशन पीरियड, दैट फीचर इज कॉल्ड एज द कॉल फीचर। विच फीचर? कॉल फीचर। शी मे कॉल फॉर द रिडम्पशन इवन बिफोर द मैच्योरिटी। लेकिन भैया यही राइट अगर तुम पारुल को नहीं और वत्सल भाई साहब को दो कि वो अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर डाले कंपनी में से जब भी उनको मन करे, तब उनको आ गई बेटे की शादी। किन की शादी? बेटे की शादी। बात की बात कर रहा हूँ यार, अभी क्यों इतना बेटे की जो भी जिसकी भी शादी आई, अब बोले यार मेरे को तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट रहना नहीं है, 10 साल का रिडम्पशन है, मुझे तो 5 साल में पैसे चाहिए। सो दैट फीचर इज द पुट फीचर। ही में टेल टू द कंपनी, भैया मुझे रिडम्पशन 5 साल के बाद है, लेकिन 3 साल में पैसे चाहिए, मुझे किसकी शादी है? बेटे की शादी है। कॉल फीचर, पुट फीचर आर क्लियर? वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच। तो बोले इसमें खड़ा करने की क्या जरूरत है, इट वॉज जस्ट फॉर द अटेंशन, थैंक यू। These are the various features of debentures. Confirmation please, clear? All of you from the online students as well? Yes, sir. Yes, sir, clear. Thank you so much, Mr. Jeet, Mr. Rahil, Miss Amreen, very nice. Let's move ahead. अच्छा, इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है ना, दे आर सिमिलर टू लोन्स, तो वो बाद में डिस्कस फिर से करने की जरूरत नहीं। अब जाते हैं कॉस्ट ऑफ डेट में। भैया पेन पेपर निकाल लीजिए, हमें फॉर्मूला चार्ट ड्रॉ करना है, धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे।
धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। चलो शुरू करते हैं, पेन पेपर निकाल दीजिए। Pen and paper. We will be preparing this entire chart of formulas of the cost of debt horizontally. कैसे करेंगे? Horizontally. क्योंकि वर्टिकल में फिर किसी किसी की ब्रांच एक्सपांड ही नहीं होगी, फिर ये तो पेज खत्म हो गया, तो इसलिए पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, it should be horizontally prepared. So give the heading cost of debt. दो टाइप की लोन, पहली तो लमसम वाली लोन और दूसरे है डिबेंचर्स। यस और नो? तो पहले लेते हैं लोन को। अच्छा, लोन इरिडीमेबल सुनी कभी तुमने? कि कभी इरिडीमेबल हो, रिडीम ही ना हो लोन। बैंक ने पैसा दे दिया, तुम अंत तक पैसा वापरो, हमें चाहिए ही नहीं, ऐसा इरिडीमेबल लोन होता है। लेकिन इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, तो इसलिए कंपनी जा सकती है ना डिबेंचर्स में। कन्वर्टेबल भी होते हैं, डिबेंचर्स के बहुत टाइप होते हैं भैया। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली नॉट कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, दोज आर द प्रेफरेंस शेयर। सॉरी, क्लियर? अच्छा सर, इसके दो और ब्रांचेस खुलेंगे, एक तो बिफोर टैक्स और दूसरा आफ्टर टैक्स। There is always tax advantage with the cost of debt, right? We people are aware about it. Cost of debt is the tax deductible expense. Higher the expense you charge, lower will be the profits, and lower will be a profits, lower will be the amount of tax too. So basically you do the savings in the tax if you have the interest cost. So effective interest cost after the taxation benefit will be slightly lesser than the earlier one. तो लोन के अंदर जो बिफोर टैक्स होता है ना, वो इंटरेस्ट रेट है। कौन है? इंटरेस्ट रेट। सर 8% से अगर अपन ने लोन लिया है तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट भी क्या हो जाएगा? 8%। समझने वाली बात है, बिल्कुल समझने वाली। आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। कैसा है? ऐसा है, इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। अब कोई लोग पूछेंगे सर ये 1 माइनस टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, ये क्या किया क्या आपने? ये सब कुछ इसको लॉजिकली डिराइव करना है, 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं होगा। समझ लो कि आपका ये P&L है। क्या है? सेल्स कितने का? घिसा पिटा एग्जाम्पल अपना कौन सा वाला? घिसा। मुझे दौड़ना है, कूदना है, ये करना है, वो करना है, घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीनी है, लेकिन हम तो घिसा पिटा एग्जाम्पल ही लेंगे। यस बेटा, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग ऑनलाइन? No, sir. ओके, लेट्स मूव अहेड। 100 रुपए का सेल्स, एक्सपेंस कितने का? 50। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ? 50। टैक्स रेट का परसेंटेज है, समझ लो 30%। कितना? तो टैक्स का अमाउंट कितना हुआ? 15। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया पिक्चर में इंटरेस्ट। कौन आया? इंटरेस्ट। ये हो गया फिर से P&L अकाउंट। सेल्स कितने का? एक्सपेंस कितने का? इंटरेस्ट आया 10 रुपए। 100 रुपए की लोन ली है, 10% का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कितने का आया? 10 रुपए का। तो भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? तो उसके ऊपर टैक्स कितना हो गया? तो टैक्स में सेविंग कितना किया हमने? पहले कितना पे करते थे, अब कितना पे करते हैं? तो सेविंग्स कितने का हुआ? अच्छा, अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करें। इंटरेस्ट रेट 10% था, सो 10% को अगर अपन 10 लिख ले, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 30%, कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक 0.3। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय
0.7. So how much? 7 rupee. Earlier your cost was how much? Now your cost is how much? How much of benefit? Now 3 rupees is benefit is found over here too in the tax. है क्या नहीं? तो टैक्स में बेनिफिट हुआ तो इसका फॉर्मूला बन गया हमारा इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट. दैट मीन्स द टैक्स रेट विल बी रिमूव्ड. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़ते हैं. अरे बाप रे, अब इसकी ब्रांच है ना, उसके नीचे से शुरू कर रहा हूं. ठीक है. अच्छा, अब आती है बारी डिबेंचर्स की. किसकी? डिबेंचर्स की. डिबेंचर्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज इररिडीमेबल, अनदर वन इज रिडीमेबल. आस्था, किसी को बताना, स्पेलिंग बताना इररिडीमेबल का, किसी को मत बताना. आई डबल आर ई डी डबल ई एम ए बी एल ई. हम तो ऐसे डिस्कस कर रहे थे, कोई स्पेलिंग वेलिंग नहीं था. ऐसे तुम क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं पूछा. और दूसरे वाले कौन से होते हैं? रिडीमेबल. करो, जिनको जो समझना है समझो. अच्छा, दोनों की दो ब्रांचेस, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स. बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स. KD is often cost of debt is often denoted by KE. KD, sorry. So KD here equals to I divided by SV. I stands for the interest per debenture. Earlier when it was a rate, it was given by me that it was a rate, interest rate in loan. Now I stands for the interest per debenture. And SV stands for the sell value. Which value? Sell amount of interest per debenture. अच्छा, अब जाते हैं आफ्टर टैक्स में. आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला छोटा सा चेंज होगा. आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय एसवी. टैक्स का बेनिफिट क्या कर दिया हमने? एलिमिनेट कर दिया. आई का मतलब हमें मालूम पड़ गया है, इंटरेस्ट पर डिबेंचर. एसवी का मतलब है सेल वैल्यू. देखते हैं सेल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका भी एक अलग से फॉर्मूला है. वो बोला मेरा भी फॉर्मूला, तो करेंगे, कोई बात नहीं, तेरा भी फॉर्मूला. रिडीमेबल भी कौन सी ब्रांचेस? दो, आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स. देखो मेरे ऐसे ब्रांच निकल रहे हैं. बढ़ू आगे. सर केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है केडी. आई स्टैंड्स फॉर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन डिबेंचर्स दिस वन इज इररिडीमेबल और रिडीमेबल? Redeemable. Now see, when the redeemable debentures will be there, at that time there are two types of cost which the company incurs. It's not just about the interest cost. It's also about the difference you are making, difference payment you are making between the sell value and the maturity value. कोई लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया. समझो, तुमने अगर बेटा डिबेंचर्स 80 पे इश्यू किए तो तुम्हारे पास कितने रुपए आए? 80 रुपए. जब उसका रिडम्पशन होगा तब तुम 120 रुपये उनको दोगे. कब कितना दोगे? 120 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू. तो बीच में जो 40 रुपये तुम पे कर रहे हो वो भी तुम्हारे लिए कॉस्ट है कि नहीं? इंक्रीमेंटल मनी यू आर मेकिंग.
So there will be two types of cost. One is the interest, another one is the difference between the money you are receiving and money you are paying. So the formula will be slightly different. I plus MV minus SV divided by N. N stands for the number of years in a maturity. Divided by MV plus SV divided by 2. That's basically the average price of maturity value and sell value. I'll explain you, nothing to be worried about. ये sell value, maturity value क्या है, सब देखेंगे. अच्छा, अब कौन प्रिडिक्ट करेगा आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला? आई के बाजू में क्या चिपका देना है? 1 माइनस टैक्स रेट. वैसा का वैसा ही फॉर्मूला बेटो. चल चिपका डाल. KD इक्वल्स टू आई in bracket 1 minus tax rate plus MV minus SV divided by N in a small bracket like this, and in the big denominator you have got the average of MV and SV looking like MV plus SV divided by 2 divided by 2 divided by 2. क्लियर है सर? ये एमवी एसवी फिर से समझा दो क्या है. एसवी का फॉर्मूला अलग से डिराइव करते हैं. एसवी इक्वल्स टू, भैया सबसे पहले तो डिबेंचर का है ना फेस वैल्यू होगा. कौन सा वैल्यू होगा सर? फेस वैल्यू के अगर अपन प्रीमियम चार्ज करते हैं देन द प्रीमियम विल बी एडेड. इफ वी गिव द डिस्काउंट देन द डिस्काउंट विल बी रिड्यूस्ड. And either of this will happen, right? Both is not possible. So plus premium or less discount. So you get issue price. Which price? लेकिन हमारी अधूरी कहानी. यहाँ पे कहानी खत्म इसलिए नहीं होती क्योंकि भैया जो डिबेंचर्स को इश्यू करते हैं ना उस समय पे कितनी सारी एजेंसीज का परमिशन लेना, फ्लोट करना, मार्केट में बहुत सारे लोगों को कमीशंस, ब्रोकरेज वगैरह देना. तो ये जब जितना भी कॉस्ट रहता है ना उससे हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. कौन सा वाला कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट. एंड फ्लोटेशन कॉस्ट विल ऑलवेज बी रिड्यूस्ड. दैट इज इफेक्टिवली द मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी. So that becomes sell value, SV. SV बोली तुम तो SV को ही भाव देते हो. अब MV की बारी. चलो जाते हैं MV में. अच्छा, now it's about the maturity value at that when the redemption will take place, right? So say there is some face value of 100. Now at the time of redemption, again you may redeem it with the premium or at discount. So if it is at premium, it should be added. If it is discount, it should be reduced. That becomes maturity value. Flotation cost will not be there at the time of maturity, because at that time you are not supposed to hire any agencies or doing the flotation of everything, you know. It is just about transferring the money to the debenture holders in their account. So flotation cost at the redemption will not be there. क्लियर है? फॉर्मूला चार्ट एकदम क्लियर है बेड़ू? फास्ट था? आपका हो जाए तो इसके बाद में पिक भेजोगे मुझे आप इसका? ठीक है, थैंक यू. फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन. किसके लिए? फ्यूचर के लिए. आपके लिए तो रौनक सर एक साल है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत साल हो गए ना बच्चे. जैसे अच्छे कोई चार्ट्स वगैरह मिलते हैं ना, बच्चे प्रिपेयर करके बैठते हैं, तो मैं उनकी क्या ले लेता हूँ? स्नैप ले लेता हूँ. क्लियर है? अच्छा, एक गीत गा के अंत करेंगे. मेरे साथ सब गीत गाएंगे. 1 ही मिनट का समय है, गीत गा के अपन खत्म करते हैं.
गाओगे कि नहीं गाओ? फिर पोपट नहीं करना मेरा, मैं इधर से गा रहा हूँ और तुम लोग उधर से कुछ नहीं करोगे तो फिर सर का क्या हो जाएगा? पोपट। गजब बेइज्जती हमें नहीं करनी। गाओगे ना मेरे साथ? पक्का? चलो गाना शुरू करते हैं। The focus and the limelight is here. This geet is dedicated to the KD Aftertax. शुरू करते हैं। हाँ, माइक टेस्टिंग। हेलो, ऑडिबल? हेलो, It's audible. थैंक यू। गाना I in bracket, I in bracket, 1 minus tax rate, 1 minus tax rate, plus MV minus SV, plus MV minus SV, divided by N, divided by N. Remember that in the back of your mind. Remember that in the back of your mind. The whole is divided by the average of MVSV. The whole is divided by the average of MVSV. KD after tax for debentures. अब साथ में गा सकते हैं। I in bracket 1 minus tax rate plus MV minus SV divided by N. Remember that in the back of your mind. The whole is, अरे भैया, the whole is divided by the average of MVSV to be divided by the average of MVSV. Clear है? Thank you so much. Please put your enrollment number as a marker for attendance. We'll see the questions of this in the next session. क्या स्पीड में जा रहे हैं ना? सुपर स्पीड में जा रहे हैं एनरोलमेंट में। Are you going out, dear? Give me just a 30 seconds. No, I'm going.